Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity, and society formed the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Australia, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin, and capture power. He failed, was arrested, tried for treason, and later realized the Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement, as we have seen after 1929. Banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with the destitution. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restored the dignity of German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all foreigners, foreign influences, and resist all foreign conspiracies against Germany. Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of ritual and spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banner with the swastika and the Nazi salute and the ritualized round of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. Nazis propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a survivor, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered, and who were living in a time of acute economic and political crisis. हिटलर का उदय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी की कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चों पर संदेशवाहक का काम किया, काप्रोल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की
जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने उस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक केमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े राजनीतिक केमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नास्तिकवाद ने एक आंदोलनक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हमें चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और 37% वोट मिले। 37 वो हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश के विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलाबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शनों को लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नास्तियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नासी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। नासियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही के उबारने के लिए ये अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का आस चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट में गुजर रहा था। The destruction of democracy. On 13 January 1933, the President Hindenburg offered the Chancellorship, the highest position in cabinet of ministers, to Hitler, by now the Nazis, and managed to rally the conservatives. Their cause having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of the democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decrees of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, and assembly that had been guaranteed by a Weimar constitution. Then he turned on his arch enemies
28 February 1933 identify the suspend civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. The repression of the communists was served out of the surviving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of half a million population. 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among on the type of 52 type of victims persecuted by Nazis across the country. On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. Special surveillance and security forces were created to control and order society in way that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and as the SA or the stormtroopers. This included the Gestapo, Secret State Police, the SS, the Protection Squad, Criminal Police, and the Security Service (ST). It was the extra constitutional power of this newly organized force that gave the Nazi state a reputation as the most dared criminal state. People could now be concentration camps, deported at will, arrested without any legal procedure. The police forces acquired power to rule with impunity. लोकतंत्र का ध्वंस 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्त प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारियों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूर्सफोर्ड शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची-कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों को ही सफाया नहीं किया। नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया।
नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा सेवा एसटी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी राज्य को एक खूंखार अपराधी राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो को नियंत्रण गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था।